Javed Akhtar, wait for further introduction on that. I've got Tushar Kapoor, thank you so much for being with us today. And two children are going to tell us some really interesting stories. Sushmita and Vijay, both of them are going to be talking to us about some of their own experiences in just a couple of minutes. But before I come to any of you, everyone, please put your hands together for Saddam Khosla. Good evening, guys. Obviously, before I start, I'd just like to say that I'm really honored to be part of this awesome campaign. So let's all work together and keep our country clean, right? Hold up, move their hand. Obviously, that's not going to clean the country, but they have to draw people's attention to the issue, to the problem. Now, what is our problem? I think generally they believe that we don't understand what is illegal. It is not true at all. If you see an average Indian house, whether it's a resident house, or a middle class house, or a lower middle class house, or even in a slum, you will see that 99.9% Indian homes are very clean. घर के अंदर साफ Yeah, बाहर साफ so the problem is not cleanliness. The problem is the sense of protection, sense of ownership. आपका घर आपका है. Then why don't you believe कि ये गली भी आपकी है? Why don't you believe that this road belongs to you? We have to make people understand this. कि कहीं उनको लगता है कि ये घर हमारा साथ है, हमारा काम करता है. लेकिन जो एक civic sense होता है, जो collective understanding है, वो लोगों में है. Which is very बिल्कुल सही कहा जावेद साहब ने। और जावेद साहब, सुबह से हम लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम सब के अंदर एक ऐसी सोच आ गई है कि भाई ये हमारे फुटबॉल के द्वारा, खेल के द्वारा और बहुत सी समाज कल्याण की चीज़ें होती रहती हैं।
प्रसून जोशी को बुलाना चाहूँगा जो जो हमारे साथ नहीं बाहर है, तो उनको अंदर बुला जी जी प्रसून। Swachh Bharat Abhiyan. I know you've been advising the Prime Minister on many other issues. Was this ever one of the things that was discussed, and how to take a simple idea like this, keeping India clean, and how do we take it to everyone? Yeah, Prime Minister started this. I felt this was something which really needs to be done, and it requires a mass movement. Contrary to a lot of people and a lot of your friends in media who criticize and taken a hard stand on how celebrities have come forward and they have taken up the issue. I always believe that a country as large as ours hugely requires symbolism. In fact, I wrote in one of my columns that when people can change their hairstyle and their how they dress up, looking at Shri Bachchan, when they change the hairstyle, why can't they change the way they behave? Why can't that impact? On one hand, we think that it can impact. On the other hand, why can't it impact? So I think symbolism plays a big role. The fact that the people who are of prominence go and take the cause in their hand. Nobody expects, Javed Saab to be every day on the street. It's impractical. I mean, you can't probably do that. But the message can spread. Javed Saab always said, one of the sort of stories in the 70s, Amit Ji was. When you started writing, you used to write all those scripts. But everything was like, but all of us used to write, see the scripts that you used to write for Amit Ji at that time. It often used to strike a number of people. We wrote this for that. And that anything that you could get Amit Ji to say on screen, people would believe. They would walk like him, they would look like him, they would cut their hair like him, they would speak like him, they would try and behave like him. So, to get someone like him to come out here and start spreading this and other messages is something which hopefully will start to make a big difference. Yes or no? देखिए क्या होता है कि अमिताभ बच्चन साहब ने जो सारी ये कोई ईमानदार आदमी चेक किए हैं तो फिर हिंदुस्तान में करप्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ बातें होती हैं, कुछ नहीं होती। देखिए जहाँ इंडिविजुअल एफर्ट्स की बात है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इंडिविजुअल एफर्ट्स का मतलब जब तक के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा कुछ नहीं। आपने किसी को कहा अपने घर के सामने कचरा मत फेंकिए, चलो वो नहीं फेंके, कहाँ फेंके? कोई जगह तो होनी चाहिए। वो इंडिविजुअल वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एनी बिग सिटी produces thousands of tons of garbage every day. उसकी रिसाइकलिंग का क्या सिस्टम है, उसे कलेक्ट करने का क्या सिस्टम है? तो अगर मैं सड़क पे मेरे हाथ में कागज का टुकड़ा है जिसमें लिखना चाहता हूँ तो मैं कहाँ लिखूँ? क्या कोई डस्टबिन अवेलेबल है 100 यार्ड पे? नहीं। एक आदमी हुआ ईद ये हिंदुस्तान में कितने दुख की बात है। चलिए भाई घरों में टॉयलेट होने चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सड़क पे जा रहा है, आप उसे कहते हैं रोड यूज करो, ये ओके ही बोल दो प्रवेश सिस्टम हमारे जब तक ठीक है तब तक इंडिविजुअल एफर्ट से भी कुछ नहीं। I think that's a very valid point, Rasul, that you need to have some basic systems. Where do people throw the garbage? Where do they go? नहीं आप कहते हैं कि भाई सबके पास रोजगार नहीं है, फिर भी हर आदमी चोरी तो नहीं करता। तो there is, I think I understand that there has to be basics in place, but at the same time the intent. Pratham Saab, generally at the drop of a broom we create either or. It is not either or, it is both. And as a matter of fact, it is even more important that the system should be. जब तक वही नहीं हो, अगर आपका गार्बेज कलेक्ट ही नहीं हो, अगर आपका गार्बेज रिसाइकलिंग नहीं होगा, यहाँ पर हमारे शहर में एरियाज हैं जहाँ पर माउंट एवरेस्ट बने हुए कचरे वो वहाँ डंप कर दिया और उस पूरे एरिया में बीमारियाँ हैं। Now how can individuals solve that problem? So Amit Ji, there are a couple of questions from Twitter which have come in which are slightly related to this. I think somebody
called Certified Patriot says, what are the steps our government is taking to train people from the municipalities? Somebody, Ravina has asked, can't we deploy ways to increase the sanitation workforce, especially in the big cities out here? So all of this is also related that while we should certainly put the onus on individuals, at some stage the government, the state will have to also step. मैं बिल्कुल सही कहा आपने. अभी आपके आने से पहले चंद प्रांतों से जितने मुख्यमंत्री थे उनसे हमारी चर्चा हुई. उन सब ने यही कहा कि वो भी ऐसा एक अभियान अपने क्षेत्र में चला रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं सरकार की तरफ से योगदान हो, न केवल धनराशि बल्कि शिक्षा के प्रति स्कूल में जाकर के उनको शिक्षा देना, जागरूकता पैदा करनी कि देखिए एक अकेले का काम नहीं है, सब मिलजुल करके करना है. और मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये दोनों संस्थाएं, सरकार की और जो व्यक्तिगत रूप से जो लोग हैं, मिल करके अगर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका बिल्कुल सही कहा. अभी I think एक चीज से नहीं होगा. It is very important, and that's the reason I again come back to symbolism and the fact that it is a mission, and again needs to be stated by various people at various junctures, whether it's government authorities, celebrities, or social activists. I think it cannot happen, and at the same time, what Javed Saab said that तो पूरा जो सूखा और गीला कचरा है वो अलग कैसे करना है, ये basic education, and the government needs to provide proper law also. If you are dirtying some place, are you responsible or not? I think that also goes hand in hand. So it has to be a composite solution. Absolutely. You have to get everyone together, Yes. which is sort of what we're trying to do in this particular cleanathon. We're getting a range of voices, and actually we're almost flooded by the amount of number of suggestions, the number of people who are wanting to be part of this. So in fact, I am being told I have to go for a break, and then we will continue this just after that. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. 15 seconds, stand by. 9, 7, 6,
with us, and this is something which you want to relate close to your heart. Okay, if that's working, that's okay. So, this is something very close to your heart, right? सुबह 8 बजे निकले हम तो दिल में नहीं हुआ शाम को लौटते वक्त निकल रहा बंदा तो मिला कि नहीं अच्छा बंदा है तो याद रख मिला कि नहीं अभी यार दूसरे दिन हम बॉम्बे पहुँचे अपनी इस्तेमाल करने तो इतना गंदा और इतना बुरा था तो ये नहीं समझते हैं हम एक्चुअली ये शुरू से हमको अपने आप में आगे जाना चाहिए कि बच्चे नौकर आस पास और मेरा एक छोटा सा फाउंडेशन है पढ़ाई के लिए और एक उम्र के बाद लड़कियाँ डॉक्टर तो जब लड़कियाँ जवान होती हैं कॉलेज तो है ही नहीं कभी उन्होंने स्कूल बनाया सोचा ही नहीं कि ये जरूरी चीज़ है इसका इस्तेमाल होना खबर ही नहीं बड़े मेरे बाप का और शुक्र है देर आए दुरुस्त है बहुत सारी बातें आपके आने से पहले वैद्य जी हम लोग यहाँ कर रहे थे और जो भी आपने व्यक्त किया अभी जहाँ आप गए लोगों को तकलीफ हुई उन सब विषयों को लेकर के बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और जागरूकता है लोगों में कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए रास्तों में गाँव में हमने कहा देखिए अभी भी महिलाएँ हैं और ये बहुत बड़ा संकट का विषय है क्योंकि जितने भी गाँव में महिलाएँ उनको निकलते बहुत सुबह जाना पड़ता है या फिर देर रात में जाना पड़ता है बहुत सारे प्रश्न होते हैं लेकिन इस ओर लोगों से हम बातचीत करके जो धारणाएँ हैं कोई भी सुझाव हो उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं और आज का जो ये कार्यक्रम है इसमें हम उम्मीद करते हैं कि ढेर सारी धनराशि बहुत से लोगों ने योगदान भी दिया है आप भी उन्होंने कहा है कि तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप आज हमारे साथ हैं क्योंकि आपके चेहरे से और आपकी आवाज़ से जो बात निकलती है तो लोग देखते हैं सुनते हैं जाने पहचाने पहले नहीं सही बात है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान और आकर्षित होता है तो निश्चित रूप से आप जो कुछ भी करेंगे ये लोग सुनेंगे और समझेंगे उम्मीद करते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान में विक्रम, मेरे राय में इस तरह का प्रोग्राम पहली बार हुआ है मगर इतनी जल्दी लोगों पे असर नहीं होने वाला है। मेरी राय में कम से कम साल 2 साल के लिए हर 4 महीने को आपको इस तरह का प्रोग्राम करना चाहिए तब जाके तो पूरी तरह से लोगों के दिमाग में बात रजिस्टर होगी समझ में आएगी फिर वो उस कोशिश में लगे रहेंगे ऐसा मैं सोचती हूँ। हमारे सहयोगी यहाँ बैठे हैं वही हमारा इरादा है कि शायद इसको जरूर चलाएंगे 4 साल 5 साल हाँ ताकि लोगों तक और प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि 2019 का लक्ष्य रखें जब तक किसी न किसी तरह के भारत को थोड़ा तो वो अच्छा
ये अव्वल तो पहले घर में ये ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम अपने आप को ठीक करना चाहिए, फिर बच्चों को देना चाहिए, फिर स्कूल्स में टीचर्स को बच्चों को समझाना चाहिए, और गांव-गांव और नौकर जाकर जो भी है समझाना चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। असली सफाई है, नहीं तो बीमारी बढ़ती है, गंदगी बढ़ती है। तो इतना खूबसूरत मुल्क हो और हम अपने लापरवाही और बेपरवाही की वजह से इतनी गंदगी फैलती है, तो बात सही नहीं है। कि मुझे जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग 4-5 साल तक का सोच रहे हैं। इट्स वेरी आपने कहा वैद्य जी कि आप बच्चों की शिक्षा के लिए आपका फाउंडेशन है, हाँ जी। कुछ इस तरह का आप वहाँ भी सुझाव देना चाहेंगे अपने बच्चों को, शिक्षा देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं जब जाती हूँ और जब मैं प्रथम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैं गुडविल एम्बेसडर थी, तो स्लम्स में मुझे जाना पड़ता है। तो उस वक्त से मैं उनको कह रही पहले आप अपनी जगह को साफ रखिए, इससे बीमारी फैलती है, गंदगी, बदबू, बुरा हाल होता है वहाँ इस तरह की जगह पे जाने के लिए। मैं तो अपनी कोशिश में लगी हुई हूँ मुद्दत से, मगर सवाल है जब somebody like मोदी साहब और लोग अथॉरिटी हो, आप जैसे हो बोले, तो उसका असर ज़रा ज़्यादा होता है। और सफाई के लिए मैं एक छोटी सी चीज़ करती हूँ, वो मेरे ख्याल से बहुत काम की चीज़ है। वो मैं अपनी गाड़ी में एक छोटा सा बैग रखती हूँ, हाँ, फाइबर का। तो जो भी गाड़ी में खाते हैं, जो भी चीज़ हो, आइसक्रीम हो, संतरा हो, केला हो, आप उसमें डाल दीजिए। अब घर जाकर उसको खाली कर दीजिए, ताकि आप, कई बार मैंने देखा लोगों ने शीशा नीचे क्या रास्ते में फेंक दिया, और उनको रोक के कुछ कहो तो बोले आपका क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी गाड़ी में से आता है, सबसे बड़ी गाड़ियों में से आता है। ये मैं शुक्र है कुछ 10-12 साल से कर रही हूँ। और कभी भी आप अभी आते वक्त स्टूडियो जुहू पे हर जगह ये जो कतला जो प्लास्टिक है ना, वो बहुत ज़्यादा चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। वो उड़ते रहते सारी मतलब लेक्स, हमारी नदियाँ सब क्लॉग हो जाती हैं, बहुत नुकसानदेह, बहुत गंदी, बहुत बुरी चीज़ है। मैं ये भी कोशिश में लगी हुई हूँ कि पेपर बैग्स बने, ताकि सब्ज़ी, भाजी, फल जो भी आप रसद ले जाएँ, ग्रोसरी लेने जाते हैं, पेपर बैग में डालिए, प्लास्टिक में डालने की क्या ज़रूरत है। और ये कैसे करेंगे आप लोग, मेरी समझ में नहीं आता। जो हम हिंदुस्तानी पान के बड़े शौकीन हैं, पान बहुत खाते हैं, और जहाँ दिल किया थूक देते हैं, उसको रोकना भी बहुत ज़रूरी है। 1-2 दफ़ा मैंने रोड पे किसी को डांटा, तो एक चौक के कहने लगे, मैंने कहा बहुत गंदा है, आप पहले बीमार हो जाएंगे, फिर घर जाके आपके सारे खानदान को बीमार करेंगे। अच्छा सॉरी। मैंने कहा सॉरी का मतलब ये है अब दोबारा नहीं करेंगे इस चीज़ को, मगर चूँकि पान के शौकीन हैं, उसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। उसको पान अभी यहाँ पर एक और सज्जन आए थे, वो भी इसी बात का पान का उन्होंने ये सजेशन दिया कि शरीर के अंदर एक ऐसा धूपदान होना चाहिए जो कि कुछ इन्वेंशन हो, जिससे कि पीपदान की तरह वो। और ये सब चीज़ की आदत डालने के लिए मेरे ख्याल से कि बहुत हेवी फाइन होनी चाहिए चंदन के। तो बहुत साल पहले जब मैं सिंगापुर गई थी और वहाँ की सफाई देखी, तो यहाँ आके कोई फंक्शन में पुलिस कमिश्नर थे, मैंने कहा साहब ये सब चीज़ें यहाँ क्यों नहीं होती? तो बोले यहाँ होना मुश्किल है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि यहाँ दोस्ती और रिश्तेदारी का बहुत वास्ता हो जाता है। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं फलां की साली के चाचा का बेटा हूँ, तो आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे फैन नहीं कर सकते। ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने सिंगापुर में कहा कि जब हम रूल बनाते हैं वो टॉप टू बॉटम बनता है। अगर उनके प्रेसिडेंट भी हो या मिनिस्ट्री हो या ऑफिशियल हो, तो वो जो पुलिस वाला उनकी आंखों में भी डाल के नहीं देखता, कहते जी आपने ये किया है, ये फाइन है, यहीं पे दीजिए, आप चले जाइए। तो वो नहीं ये कहते कि अपना वास्ता नहीं देते कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ये बातें हटनी चाहिए। और बड़े पैमाने से पीएम साहब ने शुरू किया है, अब वो नीचे आते सिलसिला वहाँ से शुरू होता है, वो सब सही होना चाहिए। खास से आपकी सारी बातें बिल्कुल सही है। खासकर जो शौचालय की बात है, उसकी जो पीड़ा होती है सबसे ज़्यादा शायद महिलाएं को होती है। हमारे दो खास मेहमान आए, ममता के अंदर आ रही हैं। ममता ने
17 साल की आयु पे वो स्कूल में क्योंकि वहाँ टॉयलेट, अब वो फिर से उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया, 12 किलोमीटर चल के जाती है कि उस वाले स्कूल में शौचालय। ममता अगर आप अंदर आए। आपके माता पिता ने ये जिद किया कि आप मुझे 8वीं क्लास तक पढ़ना? ये बोले बस आप इतना ही पढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे। फिर हमने जिद की कि हमें आगे और जाना है, तब बोले ठीक है तुम्हारा एडमिशन करवा दो। सुरक्षा की भी परेशानी होगी सर कि आपको इतना दूर जाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, व्यवहार करना है। नहीं विक्रम, थोड़ा सा ये इस कार्यक्रम से थोड़ी सी अलग की बात है। कई गांव में बच्चियां जो होती हैं उनको 7वीं 8वीं क्लास तक शिक्षा देते हैं, क्योंकि वहाँ के जो गांव वाले हैं और जो माता पिता है वो कहते हैं कि इससे आगे आपको शिक्षित करके हम अपना पैसा ज़ाया नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका तो ब्याह हो जाएगा, आप चली जाइएगा, आपको और शिक्षा देने की जरूरत नहीं। बहुत ही गलत था, बहुत ही गलत था, और कई लोग ऐसे आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके यहाँ ऐसी धारणा नहीं होगी, लेकिन ये जो आपने बात बताई ये बहुत ही सत्य है कि जब आप शिक्षा प्राप्त करने जाएँ तो कम से कम ये सुविधा तो होनी चाहिए एक शौचालय, वरना आप जैसी महिलाएँ जो हैं कहाँ जाएँ, और महिलाओं के लिए बहुत ही कष्टदेय होता है। और इसलिए हम आपको दाद देते हैं कि आपने जिद की और आप एक उदाहरण बन जाएंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम के बाद, आप एक उदाहरण बन जाएंगे। तो हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने आकर के ये बात बताई, क्योंकि आपकी देखा देखी आपकी बातें सुन करके और लोग भी जिद करेंगे कि हमको एक ऐसी जगह शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर दीजिए जहाँ पर शौचालय हो। बहुत बहुत रमेश जी, हर एक स्कूल में आजकल हमें यही सोचना चाहिए कि हर एक पाठशाला हर एक स्कूल में लड़कियों के लिए टॉयलेट होना चाहिए, सबके लिए टॉयलेट होना चाहिए, पर खासतौर एक अलग सेपरेट टॉयलेट अलग एक होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और आपको पता होगा कि जब रात के अंधेरे में लड़कियां औरतें जंगलों में खेतों में जाती हैं, वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लाइक रेप्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो घर के पास ही होना चाहिए और स्कूल्स में जरूर 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 होना चाहिए। Can I just call another guest? Dr. Kamal Khan is the founder of the CM, the community-led total sanitary. That was in 1995. And then, what's all discussion being done today here, call it the solution to the whole problem. That's what I learned, it is not a problem. It's a part of the problem. The solution is not constantly required. The solution is collective behavior change. And one of the poorest countries, farmers taught me that if you give me toilet, if you talk about subsidy, you are all the way. But the analysis that we did,
It just can't be like a simulated identity. Eating each other's shit is not the way. We know what we can do. That was the beginning of CLPS, community-led global organization, not NDTV-led or Government of India-led or NGO-led. You shit and I give you money, no, that's not the thing. They said, from the analysis, they said, each of us ingesting each other's shit. If you ask the crowd here, if you have had a diarrhea over the last 1 year, if you are in the family, then you are going to raise hands. Why? If you look at shit, you don't get that. You smell shit, you don't get it. You touch shit, you wash your hands with soap, you don't get it. You got to eat shit, and that's the smell. But all of us have problems. All shit is safe to them, right? But those who do not have access to your knowledge, they are eating, ingesting their shit. And that's what was the discovery. Over the last 15 years, 65 countries across Asia, Africa,
मेल करना पड़ेगा और इसके साथ ही साथ इसको सुंदर बनाने के लिए हमें जन भागीदारी करवानी पड़ेगी और इसको अव्वल बनाने के लिए हमें थोड़ा इसका ई फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा और इन तीनों चीज़ों में अगर हमें कोई बाधा नहीं आई तो हमें जो शॉर्ट टर्म मेजर्स है उसमें 1 से 1.5 साल लगेगा, जो मीडियम मेजर्स है उसमें 2.5 से 3 साल लगेंगे और जो लॉन्गेस्ट मेजर होगा वो भी 7 साल से ज़्यादा नहीं जाएगा। और मैं ये बात काल्पनिक नहीं बोल रही हूँ, साबरमती रिवर फ्रंट का जो डेवलपमेंट हुआ, जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हुआ जब मोदी जी मुख्यमंत्री जो उन्होंने किया तो मैंने वहाँ जाकर के इसकी स्टडी की तो उनको क्या क्या समस्याएं आई थी। गंगा और यमुना भी गिर रहे हैं और मैं ये देखने के लिए गई कि उनमें जो STPs लगे हुए हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं और उस समय पर मैंने देखा कि गंगा और यमुना के किनारों पर बहुत बड़ी मात्रा में गंदगी के ढूंढ, आप ढूंढ समझ गए होंगे, इकट्ठे हो गए और उससे मेरे दिल को बहुत व्याकुलता हुई और आज मैंने पूरे इसकी कमिश्नरी के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और उसमें मैंने कहा कि मुझे 1.5 साल। उमा जी नमस्कार, मैं प्रियंका चोपड़ा बोल रही हूँ और बस ये कहूँगी कि यहाँ पे आई गेस हम सही वक्त पर आ गए कि आपसे मुलाकात भी हो सके, आपकी अच्छी अच्छी बातें भी सुन सके एंड थैंक यू सो मच कि आप इतनी बड़ी इंस्पिरेशन रही हैं हम सब। मैं प्रियंका को ये कहना चाहती हूँ कि प्रियंका के चेहरे, मैं कुछ कहना चाहती हूँ प्रियंका जी जरूर। प्रियंका के चेहरे पे जो हंसी है वो बहुत नेचुरल है और मैं ये मानती हूँ कि ऐसी नेचुरल हंसी जो है वैसे ही नदियों की हंसी हो जाए, वैसे ही गंगा की हंसी हो जाए। क्या बात है, बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी की नजर आप पर पड़ी है और ये बहुत बड़ी बात हुई है और प्रियंका मैं आपसे आग्रह करूँगी, जैसा मैंने अभी अमित से आग्रह किया कि आप प्रयाग की गंदगी पे थोड़ा नजर रखिए और इसकी स्वच्छता के लिए आप कुछ कर सकते। आप भी प्रियंका उत्तर प्रदेश की और मैं उत्तर प्रदेश से सांसद में आपको भी कहूँगी कि बरेली में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इसको आप सुनिश्चित करिए, आपकी जन्मभूमि है बरेली। जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जैसे अमित जी भी कह रहे थे। मैंने भी काफी वक्त बिताया है गंगा में, संगम में, यूपी में घूमते हुए और बरेली की जब आप बात कर रही है, लेकिन स्वच्छ भारत जो है वो अब मेरा पर्सनल अभियान है और हमेशा रहा है। तो आई होप कि जो प्रधानमंत्री जी की नवरत्न में बनी हूँ वो आगे तक लेकर जा सके उस बात। उमा जी ने आपके उत्साह और आपकी ऊर्जा को देख करके ही फैसला किया है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। उमा जी आपसे सवाल पूछना था कि हम सब माँ गंगा की पूजा करते हैं पर उसी माँ गंगा में हम कितना कूड़ा फेंकते हैं, जितना कचरा फेंकते हैं, प्रदूषण फेंकते हैं, सूरज टंकियाँ वहाँ अंदर जाती हैं। गंगा एक तरह से आप देखें तो अगर भगवान से थोड़ा नीचे आए या वैसे गंगोत्री से अगर नीचे आए तो एक तरह से वो पूरी नदी मैली हो गई है। तो आपके प्लान्स क्या हैं कि इसको अगर हमें सुधारना है, इस स्थिति को सुधारना है तो कैसे सुधारा जा सकता है? इसको 3 तरीके से ठीक करना होगा। एक तो जो औद्योगिक गंदगी है उसको रोकना होगा, एक जो सीवर लाइन की गंदगी है उसको रोकना होगा, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। औद्योगिक इकाइयों को भी इसके लिए तैयार हम कर रहे हैं। साथ ही साथ में इसमें जो लोग गंदगी डालते हैं उस गंदगी को अभी तो A lot on this particular topic at all. I think that's fantastic. I think that kind of leadership we can't give only support. Yeah. अमित जी आखिर में आप उमा जी से कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमा जी, और एक बार फिर हम सब प्रगतिशील हैं इस स्वच्छ भारत अभियान में और यहाँ सबके सामने आपके सामने भी प्रण करते हैं कि अपने आप को हम समर्पित करते हैं जो आप योजना कर रहे हैं गंगा की सफाई स्वच्छता। जी यही कह रहे हो आप, मैं बोल रहा हूँ गंगा किनारे, छोटा गंगा किनारे वाला। बिल्कुल सही कहा आपको हमें जी प्रयाग की गंगा को अभयारण्य बनाने के लिए और प्रयाग को शहर को निर्मल और सुंदर बनाने के लिए जो बात आपने मीटिंग के सामने कही है वो आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल अवश्य। लोग आप बहुत प्यार करते हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, ये मेरा। Just one more thing, if you really want some work done on the Ganga, please rope in Mr. Ronnie Screwvala. He does more work quietly than all of us put together. He's a man of action. Rope him in. He's just enough. I help you. Are you ready? मेरे को आप मैं इनसे मिलना चाहूंगी। इस प्रोग्राम के बाद में मैं इनसे
Priyanka, anything final words? बस कुमार जी थैंक यू सो मच कि आप इस अभियान को इतना आगे तक लेकर जाएंगी एंड आई थिंक गंगा जी हम भूल जाते हैं कभी कभी कि हम उस देश से आए हैं जहाँ पे जिस देश में गंगा बहती है। सही है हम भूल जाते हैं उस बात को। प्रियंका तुम भी ध्यान रखना कि मोदी जी ने अगर हमारा चयन किया है तो उसका मोदी जी को निराश करना था, देशवासियों को निराश करना। मैं तो किसी को निराश नहीं करूँगी। मोदी जी ने प्रियंका को नॉमिनेट किया था और प्रियंका ने एनडीटीवी को नॉमिनेट किया था, तो ये जो कार्यक्रम प्रोग्राम चल रहा है एक तरह से मुझे यहाँ से तो बहुत अच्छा एनडीटीवी का बहुत बहुत अभिनंदन। उमा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ थी और जैसे प्रणय ने कहा फाइनल अश्योरेंस मेरी टीवी पे जो भी हम कर सकते हैं 100% anything to हम आके मिलेंगे आपसे जो भी मदद चाहिए आप हमें बताइए। थैंक यू। Pranay, I have to say that I'm suddenly feeling a lot at ease because in all the telethons I have done, Amit ji has been there for 2 of them, and Priyanka has been, helping me in that for the last, how many? 5? No, 4. 4 green thumbs, 1 my hour. So 5. Yeah. So she got 5 and then so where do you see some morning back? Shooting. I was shooting with Sanjay sir for Bajirao. I have another job as much as you think that I'm a sidekick. I'm also an actor. You're a sidekick when you are? I was trying to make you feel better by saying I'm a sidekick because actually you're my sidekick. I was about to say that. And I have repeatedly told her the worst thing to do is take a 99% salary car. And we'd be more than happy to have her actually TV 24. That's a day job on TV. I would be very happy. I don't know what will happen to NDTV if I ever join NDTV. Under Dr. Roy Satyashaya. What happened? You must be missing Mr. Cyrus. I don't miss Cyrus. I never miss Cyrus. We only use Cyrus when we are tired. If he was here, you would never get away with it. Well, that's true. Because I'm saying it. Yeah, that's very. So, Priyanka, you did the Prime Minister nominated you, the nominated and you were nominated. Other partners such as Adi, Secretary of getting off as well. So we've actually been able to take all this forward. I hope you're happy. But I would like to say thank you, NDTV, for taking my nominations so seriously and doing an entire campaign around Swachh Bharat. It makes me feel great with my choice. So thank you. And we did get a tweet from the Prime Minister also saying he was very happy with the way this is going on. So that was also good to hear. I mean, it is brilliant campaign. It's just total nation's imagination. And you've seen the results of this whole clean-up. It's just huge. Don't get rid of this, except for you. We keep doing this every year. Actually, there was a proposal while we were conducting this that we should do it more often. Just to bring in some continuity so people don't forget rather than wait for it. Right. They all forget. And measure what have they been changed? Yeah. Somebody just tweeted and said, I have 56 of them per year. That would be a difficult. Yeah. Don't keep dying or maybe No, but after that, we were working in the whole day. And night. But really, we should be doing more often. Somebody actually have some kind of regularity and keep reminding people. It should remain in their minds. So I'm trying to catch our patient's eye. They're both trying to look away. You can see more often. Indeed, one of the people that actually came on to put up a question and said, what happens after tonight? You finish your job and gone, but what happens after that? So really, we should have answers to this. And one of the answers is to continue doing this
really important. Momentum is crucial. Just kind of give you the report card also. The report card. What's the progress been? Has anything happened on the ground? Who's done what? Have you spent your hours? Actually, it's true, and eventually all our customers, like when I had done my campaign for Swachh Bharat, we cleaned out and rehabilitated an entire neighborhood in Versova. And I told those people that, we've given you whatever you needed. It is direct, clean place, your water body is cleaned out, there's space for children to play. And those children used to clear a mountain of garbage with glass and bulbs and for years, for decades. So now they have that whole space, and I told them I'm going to come back in a month to check. So there has to be, and then get into making toilets, and if they sustain it, but you need to kind of have a sustenance plan which makes people, unfortunately, feel the sense of, civic sense, And initiate some kind of a reward. Yeah, maybe that would help. Make it competitive, whole competition. That if you clean this is what you can get. Or you put one group against the other and have a reward at the end of it, declare a winner, and then sort of give an incentive to them for the next year. So next year you got to do better than them because they just want to. Yeah. Something like this. Right, Civic Foundation obviously does a great job. So the question of